Assalamu alaikum, everyone. This is Dr. Aisha Zia from Lifeline Co. And today we are all meeting to hold our first ever podcast. Lifeline Co. is an online mental health service. We provide online psychotherapy sessions, and our basic goal is to create awareness and to make treatment accessible. So, on our social media platforms, we write posts, we conduct webinars and awareness sessions. We also collaborate with other organizations and social media influencers to spread our vision and to create awareness. So, today's podcast is also a part of uh, this goal that we have to talk on mental health, and specifically we are conducting this event in reference to the World Mental Health Day, which is celebrated on 10th of October every year. And this year the theme is mental health in an unequal world. So we have our co-founders with us, Dr. Saima Saif and Dr. Munazza Mansoor. And today our guests include Ms. Rabia Jafar, who is a clinical psychologist, and she is a researcher. And her research basically focuses on test development and developing local norms for an intelligence test. And she has a lot of experience in treating clients having different sorts of problems. And she's also an educator, apart from being a mom and a very opinionated person. So thank you so much, thank you so much, Ms. Rabia, for joining us. Thank you for having me. Okay, so we also have one more guest, and once she joins us, so I would be introducing her. So yes, Dr. Munazza. Today our talk is about mental health in an unequal world. So can you please share something about it? Okay, so this is a very interesting theme because you can look at it from so many different aspects. आप अगर देखो mental health को, तो mental health is such अभी भी it's such a new concept for everyone कि उसमें कहीं ना कहीं ये inequality आ रही है. One of the ways इसको if we can talk about it, it's that कि it's not accessible for everyone. Like every age एज का भी एक फैक्टर आ रहा होता है कि बच्चों की मेंटल हेल्थ को नहीं लिया जा रहा होता कि उनको क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे. जेंडर डिफरेंस आ रहा होता है कि वेदर men कैन शेयर देयर फीलिंग्स और नॉट, या वुमेन के क्या फीलिंग्स है, क्या राइट्स है, क्या चीजें. मतलब not everyone is accessible to it. And it is considered like a privilege कि if you have this तो फिर आपको कंसिडर किया जा सकता है कि ठीक है आप मेंटल हेल्थ ले, मेंटल हेल्थ की कोई फैसिलिटी आप वो कर सके. एंड सिमिलरली इट इज नॉट एक्सेसिबल बिकॉज कि इतने ऑप्शंस ही नहीं है कि हर कोई उसको एक्सेस कर सके. इकोनॉमिकली भी अगर हम बात करें. Yes, that's very true, Dr. Mehta. Yes, so Rabia, like in Pakistan's context, we have a lot of inequalities, like social inequalities. There's economic and political inequality. Then there's inequality in terms of mental health. So, how in Pakistan's context do you see this, or what comes to your mind जब हम mental health को पाकिस्तान के context में inequality से link करते हैं? See, I've had this question for a while कि हम जब inequality की mainly बात कर रहे होते हैं, so mostly we're talking about socio-economic status and all of that. ठीक है, mostly, and जो भी इसका जो इस साल का जो theme था, it was also mainly related to in terms of this only accessibility to services and all of that. But then I was also thinking कि ये जो तबका है जिसको हम कहते हैं of lower socio-economic status, do they even want to access those services? Yeah, do they even have an awareness that they need it? Or sometimes I feel like उनको awareness भी नहीं होती और उनको maybe emotionally उस तरह वो feel भी नहीं कर रहे होते जितना maybe हमें feel हो रहा था. In the sense, take an example. For example, अगर मुझे या तुम्हें ऐसी conditions में रहना पड़े जो बहुत ज़्यादा unsanitary है, ठीक है, for example, according to us, सही है, and हम like we would be
trauma is maybe a bigger word or whatever, we would be disturbed emotionally also apart from what the physical disturbance we're feeling. But some of these people, they have been living in these conditions, ठीक है, और उनको ये अवेयरनेस भी नहीं है ना उस, और इमोशनल वो होना तो दूर की बात, उनको तो मतलब फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड भी जो इश्यूज हैं उससे रिलेटेड उसकी भी अवेयरनेस नहीं है. सो नाउ डू वी गो एंड डू वी टेल देम कि ये कितना मतलब आप उसमें रह रहे हैं, डू वी यू नो sort of क्या कहेंगे उसको, I'm forgetting the word, कि हम उसको क्या करेंगे, what do we do it? करें, मतलब is it necessary to address it, उस चीज Yeah, को, do we मतलब sort of tell them कि ये देखें ये इतनी बड़ी बात है, और you know you should, you know, because we feel it, because we know जब आपको मिला ही नहीं है, so you know, so sometimes I feel कि emotionally they उस पॉइंट पे आते ही नहीं है कि वो उन चीजों को फील कर सकें. We do because obviously we're in a better different sort of environment also, given that हमारी वो needs पूरी हो चुकी हैं जो you know that hierarchy जिसकी हम बात करते हैं. So sometimes I feel like that's my question कि do they even feel that need, और हम किस हद तक जाके उसको वो करें, trigger करें basically उस as I was saying exactly, मतलब we have something to compare to ना. And I think आगे इस point से हमें इस magnitude का भी अंदाजा होता है कि inequality कितनी deep rooted है. मतलब not in exact, I mean we can discriminate, but people who are living in such conditions, उनके लिए this is how life is, you know. एक comparison के लिए कोई yardstick नहीं है. और like you said कि उनके अंदर ये शायद thought pattern ये कभी trigger ही नहीं हुआ कि there are things that they are missing out in life because of inequality, not because of them but because of their circumstances, और जो systematically जिसमें उन लोगों को fit किया जाता है. मतलब उनकी वो एक generational cycle भी होता है ना, तो वो अब जो उस generation में आगे लोग पैदा हो रहे हैं उनको उनके लिए वही pattern है, वो उसी को follow करेंगे. So I mean that's very true कि उनको वो नहीं है. So, maybe they don't feel it, you know, they're unequal or they're not getting it. उनको बस जो मतलब there might be individuals and those are the exceptions जिनको अंदाजा होता, but अगर generally आप population को देखो, so they don't even, you know, I don't, that's just what I've been thinking lately. Yeah. It's interesting. Okay, as I was saying कि जो mental health in an unequal world इस बार थीम रखी गई है. First of all, I'm very happy with this topic क्योंकि ये एक बहुत ही, अगर आप different लोगों से देखें तो हर कोई अपना एक perspective बताएगा based on their own experiences. जैसे राबिया ने कहा, डॉक्टर आयशा ने कहा कि जो based on Maslow's hierarchy के जब basic needs आपकी fulfill होती हैं, then you come towards mental health. And this inaccessibility basic difference, ये I think आप किसी से भी पूछ लें, everybody understands that. Even अगर मैं personal example दूं, if I am advising my helper कि तुम अपने बच्चे को ये इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, इसको नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाओ, तो वो आगे से बोलती हैं बाजी हमारे पास खाने को पैसे नहीं है, तो हम उस लेवल तक कैसे पहुंचे. That they understand. And we know about this inequality. एक interesting inequality I would like to ask all of you कि as a psychologist जो clients हमारे पास आते हैं, those who are aware कि psychological help कितनी important है, उसमें भी आपको कितनी inequality नजर आती है based on gender, based on age, or based on norms कि आपका culture, you are like confusing the culture with religion. So I would like to focus on that thing कि based on the clientele we are getting, उसमें क्या inequality है. उसमें भी यू नो बहुत दफा स्पेशली अगर हम जेंडर की बात करते हैं ना, फीमेल्स की, तो हम जो पहले डिस्कस भी ये बात कि दिस ब्लरिंग द लाइन बिटवीन कल्चर एंड रिलीजन एंड ऑल ऑफ दैट, तो बहुत दफा मैं इसी उसमें अटक जाती हूँ कि कभी कभी जो फीमेल क्लाइंट्स होते हैं उनको अंदाजा ही नहीं होता है दैट देयर राइट्स हैव बीन टेकन अवे. दे जस्ट थिंक कि ये यू नो दिस इज हाउ इट इज एंड दिस इज हाउ इट वुड बी एंड इट इज राइट व्हाटएवर, ऑल्दो वो सब अनकॉन्शियसली उनको अफेक्ट तो कर रहा होता है, उनके जो है ना जो भी इश्यूज हैं, व्हाटएवर इश्यूज दैट कम विद इमोशनली, बट दे डोंट हैव एन अवेयरनेस कि उनको लगता है हाँ ठीक है दिस इज हाउ इट्स सपोज्ड टू बी. तो समटाइम्स आई एम इन अ डिलेमा कि शुड आई ब्रिंग दैट अवेयरनेस, बिकॉज वंस दैट अवेयरनेस कम्स तो वो जो भी फॉर एग्जांपल डिप्रेशन है या एंजाइटी व्हाटएवर, इट इज गोना गो अप. और उसके बाद then again would they be continuing the process, because
वो जाके तो उनका दिमाग खराब हो गया ना साइकोलॉजिस्ट के पास जाके, तो कि उसके बाद नाउ शी स्पीकिंग अप, या फिर मेरी और तबीयत खराब हो गई उनके पास जाके, तो सो यू नो, तो फिर जो दूसरे इशू जो मेन काम हो रहा होता है जिसपे प्रोग्रेस हो रही भी होती है, वो भी थोड़े से जेपडी में पड़ जाते हैं कि पता नहीं अब फिर वो भी ना रह जाएं अगर मैं इसकी अवेयरनेस उसको दे दूं। हैव यू गाइस एवर एक्सपीरियंस्ड इट? So then you have to make a Definitely. judgment call sometimes कि आप उसको yeah, and how do you do it? Yeah, Aisha. हाँ एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि बिल्कुल ऐसा होता है। और मतलब यू कैन सी के क्लाइंट की कहाँ पे लिमिटेशंस हैं, और कुछ लिमिटेशंस फिर वो क्लाइंट की अपनी नहीं होती ना, वो फैमिली और सोसाइटल फैक्टर्स रिलेटेड होती हैं। सो राव्या, अगर इफ वी टॉक अबाउट द सोशल नॉर्म्स या जो फैमिली का ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है, सो इनइक्वालिटी कहाँ कहाँ पे नजर आती है, लाइक किन किन फैक्टर्स में? वी नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइपिंग फीमेल्स टू वन पर्टिकुलर रोल एंड मेल्स टू वन पर्टिकुलर रोल, बट व्हाट हैव यू एक्सपीरियंस्ड द मोस्ट इन योर clinical exposure? One, obviously the female one. I think it is very prevalent. It's very, even जो पढ़ी लिखी बहुत, like girls who are independent and working and all of that, उसको भी उस तरह के gender norms में और उस तरह किया जा रहा है. So that, but a lot of times related to religion also, a lot of time related to age. हमारे जो structure है hierarchy के family में, मतलब लड़के gender अगर हटा भी दो, so there's a lot of वो related to के बड़े जो घर के हैं और जो whatever our age group 30s 40s whatever, उस तरह की चीजें भी, because they don't get their sort of freedom कह लो, independence कह लो given, उसमें financial वो नहीं होता, जो दूसरी जो guilt होती है ना, जो socially morally वो, although it has nothing to do with religion or वो, but culturally जो, so वो भी I have experienced a lot, which sort of holds them back, you can say, or which causes these frustrations, because वो उसमें होते हैं कि मैं गलत तो नहीं कर रहा, because मैं बड़ों को ये and then their own sort of value system as well. So वो भी, these are the two things basically, एक gender और एक age related जो चीज है ना, वो I've seen most. Okay. So cultural guilt and religion related guilt, and then making someone upset, so the constant fear that I have to be a certain way to make other people like me, or to even just be okay with my existence. So it links with Saima's point of कि किस तरह हम religion और culture को use कर रहे होते हैं. और मुनज़्ज़ा, what do you think कि different age groups में, for example, if we talk about adult married women who have older kids as well, so उनमें भी ये वाली चीजें होती हैं, बट समटाइम्स आई फील कि ये वाला जो एज ग्रुप होता है थेरेपी की तरफ भी नहीं आ पाता, क्योंकि दे हैव बीन जस्ट लिविंग इन अ सर्टेन वे, और वो उसी में दे आर ट्राइंग टू कोप विद इट, और उनके इश्यूज होते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? I think Aisha, if we look at it, तो जितने भी अभी पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की, जेंडर का, वहाँ पे एक बड़ी चीज ये आ रही है कि जो इनइक्वालिटी हो रही है वो उस माइनॉरिटी को या उस ग्रुप को वो चीज समझ ही नहीं आ रही कि हमारे साथ ये चीज हो रही है. तो अगेन वही फर्स्ट स्टेप ये आ रहा है कि देयर इज नॉट एन अवेयरनेस या इंसाइट हम कह रहे हैं कि जो एक्चुअल इशू है. जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बहुत दफा ऐसा होता है कि जब आपके बच्चे थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो आपकी जो उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है आपकी उनकी लाइफ में वो कम हो जाती है. अब यहाँ पे बहुत दफा ऐसा होता है कि जो ओल्डर वुमेन दे माइट बी प्रोन टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ इश्यूज, क्योंकि एक ये चीजें कैसे बच्चों की परवरिश से इस तरह वो था, अब वो बच्चा बड़ा हो गया, वो एडल्ट हो गया, उनकी अपनी एक लाइफ है. तो वहाँ पे अगेन यही चीज आ रही होती है कि हाउ टू केटर टू दिस, क्योंकि वो ये अवेयरनेस नहीं होती कि अच्छा ये हमारा जो बिहेवियर है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि देयर सर्टेन थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन, कोई हमारी इनसिक्योरिटीज है या हमारी वल्नरेबिलिटीज है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है. उसी से जो राबिया ने बात की एज रिलेटेड, वो भी यहाँ पर आती है कि जो एक सर्टेन लेवल ऑफ, आप समझ लीजिए, रिस्पेक्ट समझी जाती है, या देयर आर रूल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग के यंगर जनरेशन इस तरह करती है, यूथ इस तरह करती है, एडल्ट के साथ मतलब ओल्डर जनरेशन के साथ ऐसा होना चाहिए. वो रूल्स भी इसी से लिंक्ड होते हैं, क्योंकि आपको जब अपनी इनसिक्योरिटीज या वल्नरेबिलिटी की अवेयरनेस नहीं होगी
तो आप ये नहीं समझ सकोगे कि मैं जो बिहेव कर रहा हूँ वो किस वजह से कर रहा हूँ, उसके पीछे मेरा क्या थॉट प्रोसेस है और व्हाट इज द थिंग दैट इज एक्चुअली कॉजिंग मी द इशू। बाउंड्रीज की बात आती है इसमें, फिर बाउंड्रीज जो है वो ब्लर होती है, नहीं क्लियर होता किसकी क्या राइट है, किसकी क्या फ्रीडम है। तो दैट इज वहाँ पे मतलब वही चीज लिंक आ रही है कि क्या व्हाट वुड हैपन अगर हम इस किसी भी ऐसे ग्रुप को जिसको नहीं पता कि अभी अवेयरनेस नहीं, क्या अवेयरनेस देना would be a step forward or would it be something that would actually cause more imbalance in the dynamics rather than be helpful for them? like awareness in the absence of adequate resources, उसका क्या impact हो सकता है? So this is a very significant point जो कि हम इस conclusion पे पहुंचे हैं. So Dr. Saima, like when Munazza was discussing all of this, so this concept of shame came to my mind, specifically with older population, women who are entering their 30s or they're in 40s specifically, like या तो हम बिल्कुल early उसको एज ग्रुप को देख रहे होते हैं उनके इश्यूज पे या ओल्डर एज के इश्यूज पे हम बात कर रहे हैं, इन बिटवीन ये जो एक टाइम पीरियड होता है जिसमें लाइफ इज पार्शियली सेटल्ड एंड यू हैव गोल्स एज वेल, तो इट्स आल्सो लाइक अ ट्रांजिशन वाला पीरियड कह सकते हैं. सो शेम वाला एक एलिमेंट जहन में आ रहा था कि समटाइम्स जस्ट जनरली लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ये भी होता है कि शेम फील हो रही होती है, एक्नॉलेजिंग दैट आई एम गोइंग थ्रू दिस इशू. ठीक है, स्पेसिफिकली आई थिंक इन बोथ जेंडर्स, और वो मैनिफेस्ट किसी और फॉर्म में हो रही होती है. सो लाइक व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस साइमा कि जो एक शेम हमें अपने ही इमोशन से भी फील अशेम्ड ऑफ इट कि मुझे ये चीज फील हो रही है, और या समथिंग अराउंड दिस. तो ये एक इंटरेस्टिंग बात कि लाइक मेरे जहन में एक बात आ रही थी, जैसे स्पेशली जो हमारी एज है 30s, जो प्राइम एज है, आई थिंक एक शेम इसलिए भी आता है बिकॉज वी हैव बीन टोल्ड कि तुम्हारी एज में ना मैं तो ये कर लेता था. लाइक द ओल्डर जनरेशन, आई डोंट नो इफ यू पीपल हैव एक्सपीरियंस दिस और नॉट, बट कहीं ना कहीं वो आपको, इफ यू कंप्लेन अबाउट समथिंग या इफ यू आर एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, the general tiredness or the frustration of life, तो like you'll get comment तुम अभी से थक गई या तुम अभी से थक गए. It's part of life. That invalidation that you get, उससे मुझे लगता है कि that shame comes in कि ना okay, I should not feel this way because right now it's not my age to feel this way. I have to fulfill certain responsibilities and I should not feel this way. I think वो भी काफी एक matter करती है चीज. उसमें एक वो चीज भी आ जाती है ना कि यू आर बीइंग अनग्रेटफुल. ये आई हैव सीन दिस अ लॉट, स्पेशली इन केस ऑफ वही टीनेजर्स या वो कि बिकॉज अभी लाइक वन ऑफ आई हैव दिस वन क्लाइंट, आजकल वो लड़की मतलब शी हैज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस इन द सेंस कि उसने खुद ही शुरू के कुछ सेशंस में मुझे कनेक्ट करके डॉट्स बताया कि माय पेरेंट्स दे सॉर्ट ऑफ कनेक्ट मटीरियल इमटीरियल दोनों चीजों को वो मिक्स करते हैं, इन द सेंस कि मैं ये नहीं कह रही कि दे नॉट गिविंग मी facilities and all of that they didn't get, but मैं emotional उसकी बात करी जो उनको समझ. So she is very aware. I didn't have to do, but then वो जो होता है कि you're being ungrateful. अगर आपको emotionally वो feel हो रहा है, so क्यों हो रहा है? Because आपके पास मतलब they don't understand this thing. But जब हम बात कर रहे थे ना कि awareness हम लेकर आए नहीं आए because of a lot of other factors, because जो financial dependency और वो सारी चीजें होती हैं. So I also had this case in this case, मतलब उसमें भी वो teenager ही थी बच्ची, and initially तो मतलब for a year at least she उसके इतना ज्यादा guilt उससे associated था कि वो बोल ही नहीं सकती थी कि उसके father की वजह से मसला है. I think कहीं ना कहीं if she was a very intelligent girl, so कहीं ना कहीं था, लेकिन वो जिस तरह प्रेजेंट भी करती थी ना केस, तो शुरू में मुझे भी अंदाजा नहीं होता था कि दिस इज अ प्रॉब्लम कमिंग फ्रॉम द फादर और पेरेंट, ऑल ऑफ दैट. उससे जब 1.5 साल जब थेरेपी चलती रही उसके बाद वो चीज समझ आई, और आई थिंक शी वाज एबल टू उसको वर्बलाइज करना भी. जब वो एक दफा बोल भी देती थी ना, तो उसके बाद भी देयर वुड बी अ लॉट ऑफ वो टू सॉर्ट ऑफ, बिकॉज वो इतना हमारे अंदर डाल दिया जाता है कि पेरेंट्स तो आपके ये हैं और इतना करते हैं, हाउ कैन यू से एनीथिंग. सो बट इवेंचुअली खुद ही जब उसमें अवेयरनेस आई, बट अगेन फ्रस्ट्रेशन लेवल्स बढ़े, वो सब चीज बढ़ी. बट देन अगेन जो मुनज़्ज़ा का पॉइंट है कि लेकिन समझ उसको जब ज्यादा आने लगी तो शी वाज एबल टू हैंडल हर इमोशंस बेटर. इमोशंस तो बढ़ गए थे,
जो पहले थे उससे ज्यादा, लेकिन शी वॉज एबल टू हैंडल इन द सेंस कि वो जो सेल्फ हार्म और वो सारी चीजें थी वो अब नहीं हो रही थी, ऑल्दो आई थिंक शी वॉज फीलिंग इट मोर. सो आई गेस फायदा होता है to give them this sort of awareness कि okay, this is not right or whatever. Yeah, someone was saying something. I think इसमें एक चीज ये भी मैटर करती है कि जैसे कि when you're doing this in मेरी आवाज आ रही है? आ रही. हेलो, आवाज आ रही है मुझे. आ रही है? Okay. Okay. So one of the things that matters is that कि आपकी environment क्या है. जैसे अब that person जो the case was given, she had a safe space. वो therapy में ये चीज वो करी थी. तो eventually that did help. वो इसकी coping पे भी इसीलिए अच्छा असर आया because she had a safe space to express herself. अगर हम जो भी जैसे एक कमिंग बैक टू दैट के अवेयरनेस वाली बात, तो इसमें फिर ये चीज भी नेसेसरी है कि अगर हम किसी को अवेयरनेस क्रिएट करवा रहे हैं तो फिर वहां पे वो इमोशंस हो सकता है एस्केलेट करे, डिप्रेशन ज्यादा हो, ये रियलाइजेशन कि क्या क्या मेरी लिमिटेशंस आ रही हैं, वो फ्रस्ट्रेशन करे. लेकिन उस टाइम पे थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज थेरेपी इज दैट सेफ स्पेस जहाँ पे आप उस you can go through those phases. आप अपने इमोशंस को सेफली एक्सप्लोर कर सकते हैं and then come towards a coping mechanism जो कि आपको हेल्प करेगा. एंड मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप अवेयरनेस क्रिएट करके फिर दैट पर्सन जस्ट स्टेज अवे या वो और डिप्रेशन में चला जाए या वो और मेंटल हेल्थ इश्यूज पे चल जाए. उस वक्त एक आपको सेफ स्पेस की भी जरूरत है. आई थिंक दैट इज वेयर अगेन मतलब ये तो अगर हम देखें तो एज अ जनरेशन जनरली अब अवेयरनेस आ रही है राइट्स के बारे में, माइनॉरिटीज को भी. जैसे अगर हम इवन बच्चों के जो न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज है उस पर भी अवेयरनेस आ रही है, ऑटिज्म एडीएचडी है. तो उसमें भी जो वो थी जो चीजें नहीं मिल रही थी, जो फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी, वो भी अब इवॉल्व हो रही है. लेकिन ये सारी चीजें अगर अवेयरनेस आ जाए लाइक बिकॉज ऑफ द लोड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट एंड एवरीवेयर, पर आपके पास ये फैसिलिटी ना हो या ये आप फैसिलिटी अवेयर ना करें कि आप थेरेपी की तरफ जाएं या उसके ऊपर एक्चुअली कोई प्रोसेस करें, तो फिर वो चीज जो है ना वो डिफिकल्ट हो जाती है कि आपको बिकॉज व्हेन यू आर क्रिएटिंग एन अवेयरनेस, तो इतने अरसे से जो एक माइंड में था कि दिस इज द राइट वे, आप उसको क्रॉस आउट करके बता रहे हो कि नो दिस इज द राइट वे. दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ इमोशंस एंड बिग इमोशंस, और उसको प्रोसेस करने के लिए आपको एक सेफ स्पेस की जरूरत है. And that is Yes. that is not acceptable to, that is what we have, like, that's what we're discussing over here, this unequal world. Some people have that safe space and some people do not cannot access that space. Not just it's always also not just about money, it's also about कि आपको रोका जा रहा है घर से कि या whatever stigma भी हो सकता है, और whatever other stigma is one of the reasons. दूसरी चीज है हमारे यहाँ जो वो है वही hierarchy of power in our homes, उसकी वजह से भी. So that can also be How many times it happens with us कि ICT में कोई बच्चा आता था और वो मदर या फादर मतलब मदर जो है वो फादर से छुपा कर ला रही होती थी बिकॉज नो वन इज अलाउइंग फॉर थेरेपी कि आप लेकर जाएं. तो दैट इज आल्सो द रीजन कि वो नहीं मिल रही है, मेंटल हेल्थ एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि अभी तक स्टिग्मा कह ले या कंट्रोल कह ले उस चीज को कि जिसका कंट्रोल चलता है वो डिसाइड करता है कि भाई whether someone can avail mental health services or not. Yeah, so it's not always about money and वही ना दूसरी भी factors उसमें वो again, but also थोड़ा सा I think we should look, जब हम gender difference की बात कर रहे थे तो we should also look at it थोड़ा सा इस चीज को कि sometimes ऐसे उसमें भी औरतों को तो फिर भी ले आया जाता है बिकॉज हम तो होते हिस्टेरिकल है ना, तो इसका तो दिमागी मसला है, इसको ले जाओ. इसमें फिर जो मेल्स हैं वो सफर कर जाते हैं बिकॉज just buck up or whatever. I think we They are not allowed to think that other aspect also. True. So we have like एक तो ये कि structural inequality है हमारे country में. We don't have laws, we don't have licenses, we don't have we have a limitation in terms of institutes that basically provide credentialing. So उसकी वजह से the number of trained professionals, and then जिसमें ये point भी है that
it takes so much time to basically become a clinical psychologist, to attain a PhD. If you're talking about the inequality that clients are facing, we also need to see कि हमारा जो curriculum design है और जो availability of teaching institutes and training institutes, that is also limited. So the amount of time it takes for a person to basically specialize in clinical psychology or in any other domain of psychology, which is majorly absent. We only have clinical psychology, which is also causing to a lot of inequalities, because just a clinical psychologist cannot treat people from suffering from all different kinds of disorders, and इसकी वजह से हम prevention पे काम नहीं कर पा रहे ना, because a clinical psychologist is supposed to treat psychopathology or to diagnose people or to assess people, right? But at the same time, if we have to work on prevention, then we need psychologists from other domains as well. So जब ये theme आ रहा था, I was thinking कि curriculum में भी inequality है, and then when a person is in the field and they have spent so much time in specializing, so the availability of employment opportunities वो भी बहुत मैटर करती हैं कि वो person उसको pursue करेगा आगे, or they would change their field into something else, and they're not pursuing their career as a clinical psychologist, maybe not as a full-time career. So there are certain structural inequalities and there are social inequalities जो कि हमारी society का part है, and that is true कि even with adult clients, a lot of times their families don't know कि वो therapy ले रहे हैं क्योंकि emotional acceptance नहीं है इस चीज की. So if we talk about to add a point. Yes, Sarma. जैसे आयशा, you highlighted very important topic कि अकेला clinical psychologist जो है वो ये सारी चीजें नहीं कर सकता. In a lot of my clinical practice, there have been few cases जहाँ पे I felt that I needed a social worker, a lawyer. ये एक basic foundation, I needed that, because उसके बगैर I felt helpless in that case. कितने cases ऐसे हैं that I had to discuss with my seniors, and they had to tell me that they told me that you have to let it go because you cannot help this client anymore, and इसमें social work की बात आएगी, इसमें police की involvement होगी, and we don't have that network over here. So yes, you're अकेले clinical psychologist cannot play their full part in bringing an equality in mental health. इन सब की भी हमें जरूरत है. Second point, how much do you guys feel कि mental health, चलो हमने इस perspective से काफी discuss की कि clients के perspective से, उनके problems के लिहाज से. What about on the perspective of therapist? Like how many times you guys have to feel that when you tell the client that this amount I charged for an hour, तो आपको आगे से इस तरह का रिस्पॉन्स मिले कि यू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ और आप इतना महंगा कर रही हैं, लाइक आपको, एंड दे विल गिव दिस एटीट्यूड कि आपको तो फ्री में देखना चाहिए. तो लाइक हाउ मेनी टाइम्स डू यू गाइस Saving psychology. यस, लाइक मुझे लगता है कि वो भी इनइक्वालिटी में आएगी. हाँ, बिल्कुल आती है, and this was one of the pointers in my mind. So yes, क्या है आप लोगों के आइडियाज मुनव्वर? But I think ये जो लोग होते हैं ना, जो साइकोलॉजिस्ट को ऐसे बोलते हैं, वो डॉक्टर्स को, वो हर किसी को, मतलब वो that is their attitude generally towards paying for services. That's what I've noticed. So yes, it's not, I think, particular to us. वो डॉक्टर को भी वो कोशिश करेंगे वो ऐसी इन्वायरमेंट में मिल जाए या फोन पे मिल जाए जहाँ उनको जो है ना वो नहीं करना पड़े. बट आई डू फील इट बिकॉज एक दफा मैं बैठी हुई थी, लाइक घर में कोई इवेंट था, दावत वगैरह जो भी, सो उसमें एक I think a cousin or someone, she asked me कि जो है ना सिर्फ पागल लोग जाते ये लेकिन मैंने कहा नहीं, मतलब ऑब्वियसली जो हमारा स्टैंडर्ड रिस्पांस होता है, मैंने तो her next response लेकिन ये बहुत महंगे होते हैं साइकोलॉजिस्ट, मुझे जाना. And then I mean she asked me because obviously there was something going on in her head, but then her next वो was कि नहीं सब बहुत पैसे लेते हो तुम लोग, बस ठीक है, छोड़ दिया उसने वो डिस्कशन उसने, so I was like, okay. And this is obviously not from a very poor socioeconomics background or whatever. It's like, so मतलब उसमें कुछ लोग होते हैं जो पूछते हैं कि ठीक है हमारी limitations है, can you refer us to someone who doesn't charge as much or whatever, वो. But this was a very weird वो that I encountered. So I thought अभी जब तुमने mention किया तो मेरे दिमाग में वही आ रही थी कि yeah. But I think फिर ये लोग हर किसी के साथ ऐसे करते हैं. It's just the general attitude towards services, I feel. आई थिंक एक और इसके अंदर जो पर्सपेक्टिव है ना, तो ये भी है कि हमारा जो काम है इसमें
it doesn't seem like a profession to a lot of people. मतलब आप डॉक्टर को 5,000 दे दोगे तो वो इन रिटर्न आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा. हम जाते हैं तो फिर मतलब हमारे पास कोई आएगा तो हम कहते हैं होमवर्क करके आओ. तो इट्स लाइक और बर्डन उनको लगने लगता है कि मतलब इज दिस रियली अ प्रोफेशन या इज दिस रियली अ सर्विस जिसके लिए हमें पैसे देने हैं. मतलब क्योंकि द रिजल्ट अनफॉर्चुनेटली हमारे केस में रिजल्ट इंस्टेंट नहीं होता. कैथारसिस का ऑब्वियसली इंस्टेंट होता है एंड बट दोज केसेस आर द वंस जो कि बहुत सिवियर हैं एंड दे रियली नीड हेल्प एंड दे आर विलिंग टू कम. तो इन द फर्स्ट प्लेस दे आर ओपन टू थेरेपी एंड काउंसलिंग. बट कोई वैसे ही स्केप्टिसिज्म के साथ आ रहा है फिर उसका होता है अच्छा आपने पूरी बात कर ली, नाउ गिव मी अ सोल्यूशन, व्हाट शुड आई डू. अब अगेन वी नो एज थेरेपिस्ट कि इट्स नॉट समथिंग जो कि हम सीधा सीधा कह देंगे अच्छा ये है आप ये कर लो, बिकॉज दैट जस्ट defeats the whole purpose of therapy जो to you know make a person independent. तो इस तरह का सोल्यूशन किसी को पसंद नहीं आता कि पूरी बात भी सुन ली, घंटा बिठा दिया, इतने पैसे भी ले लिए, कुछ बताया भी नहीं. अब ये कुछ बताया नहीं वाली चीज हमारी 2 सेशन 3 सेशन 4 सेशन तक भी कभी कभी चल जाती है when we're just exploring. अब हमें पता होता है कि हम एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, हम डायनामिक समझ रहे हैं, वी आर प्लानिंग एक ट्रीटमेंट प्रोसेस. वो पर्सन क्लाइंट को आप ये कम्युनिकेट भी कर दो तो उनको होता है कि भाई मुझे बताओ ना व्हाट टू डू. तो इसका एक मैंने सिर्फ ये देखा है कि इफ नथिंग एल्स लाइक अनफॉर्चुनेटली इफ आई यूज द टर्म यू नो लाइक होकस पोकस टाइप की कोई चीज, तो मुझे लगता है कि मैं यूजुअली सेशन में क्लाइंट को कुछ ना कुछ ऐसा कुछ टेक्निक कि अच्छा चलो आंखें बंद करो, डीप ब्रीदिंग करो एंड ऑल ऑफ दैट, आई जस्ट डू दैट ताकि उनको लगे कि कुछ हुआ है. वरना बातचीत से क्या होता है दे डोंट रियलाइज इट, लाइक दे डोंट इवन रियलाइज आफ्टर अ मंथ और सो भी वो आके कहेंगे चेंज आया, वो हमने खुद कर लिया. अब वो थेरेपी से हुआ कैसे हुआ, दे डोंट यूजुअली मेक दैट कनेक्शन कि वो इनसाइट भी अगर आई है तो मे बी बात करने से आई हो. सो आई थिंक दैट्स अनदर रीजन व्हाई पीपल आर वेरी हेजिटेंट इन पेइंग, बिकॉज दे फील लाइक ये तो बस यही सारी चीज है ना, मोटिवेट ही तो करना है. 2-3 यूट्यूब की वीडियोस देख लो, 2-3 अच्छे लोगों से बात कर लो, और बाकी आधे तो हमारे ये भी है ना कि हम तो सेल्फ मोटिवेटर्स हैं, हम तो अपने आप को मोटिवेट करते हैं. तो दे जस्ट फील कि बस हम मोटिवेट ही तो करते हैं, हम तो इसके क्या इतने पैसे देना है, इससे अच्छा किसी के साथ बैठ के बात कर लो, वो हो जाएगा. एंड यहाँ पे फिर हमारी जो प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी है, वो क्वेश्चन हो जाती है. एंड सेकेंडली जो हमारे पास आधे से ज्यादा प्रैक्टिशनर्स हैं हु आर अनक्वालिफाइड, हु आर अनट्रेन्ड, जो कि बीएस के बाद बैठ जाते हैं, वो फिर उनकी उस बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि इनसे कुछ होता होता है नहीं. और वो हर जगह अवेलेबल है, मतलब इवन विद हॉस्पिटल्स, विद इंस्टीट्यूशंस जिन जो मतलब ऑफिशियली प्रमोट कर रहे हैं कि वी हैव अ साइकोलॉजिस्ट, एंड वी फाइंड आउट दैट दैट साइकोलॉजिस्ट इज जस्ट अ बीएस जिसने किया हुआ है. देयर आर वेबसाइट्स आई सीन जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट की लिस्ट में साइकोलॉजिस्ट है ओपनली, अच्छा क्वालिफिकेशन बीएस और चार्जेस 3,000. मतलब इट्स लाइक बीएस वाला 3,000 ले रहा है, चलो एमफिल पीएचडी वाला 5,000 ले लेगा, बट इट्स लाइक दैट पर्सन इज देयर एंड दे आर ऑफरिंग थेरेपी. और फिर सवाल हम पे होता है कि आप लोगों से नहीं होता या आप लोग तो यही करते हैं. वेरी तो आई थिंक दैट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम. मिस अनिला, मैं भी इसी तरफ आ रही थी. लाइक अभी मेरी ऑब्जर्वेशन ये जो लॉकडाउन में साइकोलॉजिस्ट की मार्केटिंग और कमर्शलाइजिंग जो है ये बहुत कॉमन हो गई है. तो आई वाज लुकिंग एट दिस पेज जहाँ पे उन्होंने क्लाइंट्स के फीडबैक जो है ना वो लिखे हुए हैं एक सॉर्ट ऑफ जैसे कस्टमर सर्विस की तरफ ना. तो उसमें क्लाइंट्स ने लिखे हुए आई फेल्ट वेरी गुड विद दिस थेरेपिस्ट आफ्टर वन सेशन एंड ये सब कुछ ना. अब आप आई डोंट नो वहां पे साइकोलॉजिस्ट की क्वालिफिकेशन का मसला है या क्या है. हम इनकलकेट कर रहे हैं कि थेरेपी लेने का मकसद ये है कि हम आपको हर सेशन के बाद अच्छा फील करवाएंगे. I'm sorry, that is not the goal of the therapy. Like sometimes it takes हो सकता है शुरू के 5 sessions you will hate me. My client may hate me for like confronting him or her. So उनके माइंड में ये है कि अगर एक सेशन के बाद I'm not feeling good, then this therapist is not good. तो ये हमारे जो fraternity है ना, अब maybe that's because unfortunately we don't have that licensing जो regulate करे. और ये जो आपने कहा कि with मिनिमम क्वालिफिकेशन बैठ जाते हैं, उन्होंने ये एक चीज फैलाई हुई है. एंड मुझे खैर बहुत अजीब सा लगा कि लाइक आप क्लाइंट्स के अंदर ये इनकलकेट करें कि वी आर सपोज्ड टू मेक यू फील हैप्पी. दैट्स नॉट आवर गोल. I think Munazza has to say something, then Rabia will say. ठीक है. Also, I wanted to just pinpoint this. जो राबिया ने एक बात मेंशन की कि it's not always the socio-economic level. उसमें यहाँ पे जो मसला आता है ना वो उन लोगों का आता है जो actually they want to work and they have the limitation of socio-economic level. मतलब जहाँ पे ये लोग जो लोग prioritize कर सकते हैं कि okay I can spend that much money on quality services but I don't want to.
that is something else. लेकिन there are a lot of students जो मतलब जो ना फैमिली को नहीं बताया हुआ होता, या they are doing it out of their own pockets, वो लोग, या ये कि बाकी मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे लेवल लो हो और वो लोग बाकी में दे वांट द ट्रीटमेंट, वहां पे मतलब वहां पे ये इनइक्वालिटी आ जाती है, ये डिसबैलेंस हो जाता है कि दे वांट द ट्रीटमेंट बट दे कांट अवेल इट बिकॉज मोस्ट ऑफ द सर्विसेज स्टार्ट, जहाँ पे क्वालिटी वाली बात है ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो फिजिकल हेल्थ के लिए अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाए तो वहाँ क्वालिटी वो नहीं होती जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि वी हैव दैट डिफरेंशिएशन इन फिजिकल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ पे तो ये अभी तक आई नहीं है बात कि मेंटल हेल्थ की भी क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे देयर इज नो लाइसेंसिंग और एनीथिंग। तो फिर वो लोग सफर कर रहे होते हैं हु एक्चुअली वांट द ट्रीटमेंट बट कांट अफोर्ड इट। तो जबकि जो लोग प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि ओके आई डू हैव दैट, आई कैन, इफ आई स्पेंड, मतलब नॉट दैट के आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि ओके आई नीड टू वर्क ऑन माय मेंटल हेल्थ एंड आई कैन स्पेंड दैट मच। वो जब वो बात करते हैं ना, ये जो राबिया ने कही कि इतना महंगा है, that makes the other person suffer to actually need that facility कि उनको quality mental health मिले in reasonable prices। और फिर आई थिंक एक रीजन ये भी होता है कि जब आप क्वालिटी मेंटल हेल्थ की बात करते हो कि मोस्ट ऑफ द प्राइसेस वो लोगों के लिए इसलिए अफोर्डेबल नहीं, क्योंकि हमारा यही माइंड सेट होता है कि यार ऐसे लोग हैं जो हु आर सीरियस टुवर्ड्स इट, ये ना हो कि कोई भी आ जाए एक दो सेशन ले और फिर दे नॉट सीरियस, दे नॉट वर्किंग, और फिर वो एक बैड माउथिंग हो जाए कि कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई काम नहीं हुआ और इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा होता, इट्स नॉट मैजिक, इट डजंट वर्क, और ये वाली सो वही दूसरा मैं बट यही कहना चाह रही थी कि हम अभी बातें कर रहे हैं, इट्स मोर रिलेटेड टू अवेयरनेस के थेरेपी में होता क्या है, ठीक है, एंड अवेयरनेस अबाउट क्रेडेंशियल्स या डिग्रीज या व्हाटएवर। इट इज आल्सो रिलेटेड टू, जब हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं, अबाउट एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड ऑल ऑफ दैट। अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो हमारे लिटरेसी रेट या सारी चीजें जो है ना, तो वो उसकी वजह से भी इन चीजों पे अफेक्ट उसी तरह से आता है कि जाहिर है जो पढ़े लिखे हैं दे अंडरस्टैंड कि अच्छा, वो पूछेंगे भी कभी कि भाई क्या पढ़ा हुआ है या क्या डिग्री है, या वो जो उस पर अगर लिखा हुआ है उस पर BS, एंड देन साइकोलॉजिस्ट आगे, सो अ पर्सन हु नोज अबाउट की डिग्री कितनी, क्या कितने साल पढ़ाई, व्हाटएवर, दे विल अंडरस्टैंड, दे विल क्वेश्चन मे बी, बट समवन हु डज नॉट, व्हिच इज मोस्टली द केस, दे वुड नॉट। ठीक है, तो एक तो ये, बट दूसरा अवेयरनेस की जहां तक बात हो रही है कि थेरेपी होती क्या है, वो आई थिंक all these people, like हम लोग मेंटल हेल्थ को तो प्रमोट कर रहे होते हैं, बट साथ साथ आई थिंक दिस नीड्स टू बी प्रमोटेड इन ऑल दीज जो भी सोशल मीडिया व्हाटएवर कि व्हाट एग्जैक्टली थेरेपी इज। मतलब मैंने अब रिसेंटली सिंस द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स मैंने अपने क्लाइंट्स को, स्पेशली जो नए आए, उनको ये कहना शुरू कर दिया, एक्सप्लेन करना कि भाई थेरेपी इज नॉट अ पैसिव प्रोसेस, बिकॉज मुझे खुद भी पोस्ट और वो सारी चीजें पढ़ के लग रहा होता है कि उससे एक इंप्रेशन ये जा रहा होता है कि यूल गो, बस गो टू थेरेपी एंड थिंग्स विल बी solved. So I've started saying this कि therapy is not a passive process, it's an active process. शुरू में it is that you just sort of you're वही catharsis वाली बात है, but eventually you have to work. I will not do the work. So तो फिर उनको समझ आता है कि okay, even with पढ़े लिखे या जो भी वो हैं, तो I think that is maybe we need to sort of encourage या inculcate whatever in our post. True, that's very true. That's a very important point. So what do you have to say about this, Miss Anila? And first of all, welcome to our podcast, Miss Anila, the most senior one here among us, and we are so happy to have you. I think there is some internet problem on her end. I think Anila, are you there? Yeah, we are in unequal world, right? Our unequal city, so it's very much visible in our podcast. So yes, I think I love this point that Abia mentioned. There is an active process, and somehow, like Saima also mentioned, Nazza also mentioned, कि हम इतना सुन रहे होते हैं कि अच्छा ये थेरेपी में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कि हमें भी वो फील होना शुरू हो जाता है. Am I audible? Yes, you are. Yes. Okay. Yes, actually, okay, दोबारा से मेरी लाइट चली गई, so again I had like I think कि आज कुछ सितारे मेरे गर्दिश में जहाँ स्टार्ट होती है वहाँ कुछ सनीला हम ये वो हो जाता है करते भी लीव ना, तो वो पता चल रहा है हमारे
उससे भी ना Exactly. बिल्कुल बिल्कुल पता चला है. exactly. So yes, Miss Anila, what can we do as therapists कि हम इसको हाईलाइट हम राबिया ने मेंशन किया कि हम जो है ना इसको एक एक्टिव प्रोसेस है इसके बारे में साइको एजुकेट करें. व्हाट एल्स कैन वी डू एज थेरेपिस्ट और एज ट्रेनर्स के या कम्युनिटी अवेयरनेस हम और क्या कर सकते हैं इस प्रोसेस को समझाने के लिए कि इसमें आपको काम करना होगा. अच्छा से एक चीज जो मैं मतलब मेरे जहन में आ भी रहा था वो ये कि लॉट ऑफ यूनिवर्सिटी स्कूल्स उन सब में एक डेजिग्नेशन होती है ऑफ अ काउंसलर, लेकिन दे डोंट हायर एनीबॉडी फॉर दैट पोजीशन. सो आई थिंक कि अर्ली स्टेजेस में इवन अच्छे स्कूल्स एटलीस्ट नाउ वी हैव लाइक अच्छे बाय अच्छे आई मीन लाइक द वंस जो कि जरा बाहर के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, दे एटलीस्ट हैव स्टार्टेड हायरिंग काउंसलर्स. बट अगेन वहां पर फिर वो वाला इशू आता है दैट वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि आर दोस क्रेडिबल एक्चुअल काउंसलर्स जो कि ये काम कर सकते हैं या जस्ट somebody जिसने एजुकेशनल साइकोलॉजी में बीएस करके जो आ चुका है, इज इट जस्ट दैट बिकॉज और मैंने क्या तो स्कूल्स में अर्ली स्टेजेस पे अगर आपने सिर्फ हर स्कूल में एक काउंसलर भी हायर कर लिया हु कैन लिसन टू द चिल्ड्रन, हु कैन जस्ट टॉक टू देम, एंड देन कॉलेज लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे आई थिंक एवरी डिपार्टमेंट or at least like every faculty should have one at least one, मतलब one तो बहुत कम है but at least one हो कि बच्चे कम से कम बात तो कर सकें. So I think पहली चीज तो ये है कि अगर हम start करते हैं in the form of like starting with awareness, then I think these are much easier resources जो कि हम जिनकी तरफ हम बढ़ सकते हैं जा सकते हैं कि start like hiring in your institution जो कि mental health provide कर सकें, offer कर सकें. If nothing else then वो काउंसलिंग ना करें बट मंथली बेसिस पे कोई एक सेशन तो करा सकते हैं. आप उसको फुल टाइम हायर मत करो बट एटलीस्ट हायर सम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो महीने में वंस अ मंथ एक सेशन करा दें ऑन एनी जनरल इशू एंड पीपल कैन कांटेक्ट, चिल्ड्रन कैन कांटेक्ट देम. वो उनको मजीद आगे रेफर कर दे टू सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन जो शायद कम पैसों में कर दें. जहाँ स्कूल स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है वहाँ मेंटल हेल्थ के लिए भी उनके पास कुछ ऐसा वो होना चाहिए स्कॉलरशिप टाइप की चीज या स्पॉन्सर कर दें सो दैट दे it can become accessible to them. पहली चीज तो मुझे लगती है कि this is very important. Secondly, there's another thing I'm thinking about for a very long time कि हमारे पास group therapy का concept मैंने देखा नहीं है. ग्रुप थेरेपीज अगर हम इंट्रोड्यूस करवाएं एंड उसके अंदर भी वो इस तरह की के बिकॉज उससे क्या होगा कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि इफ वी आर अर्निंग फ्रॉम थेरेपी तो वी कांट अफोर्ड पीपल जिनका फुल टाइम जॉब है एज अ थेरेपिस्ट, वो अगर सोशल वर्क करने लगेंगे या वॉलंटियर करने लगेंगे उनका घर नहीं चलेगा. तो मसला साइकोलॉजिस्ट का थेरेपिस्ट का भी अपना जेन्युइन है. वी नीड टू मेक मनी बिकॉज दिस इज आवर प्रोफेशन. साइड में कोई कर रहा है तो दैट्स अंडरस्टैंडेबल. सो फॉर दैट ग्रुप थेरेपी सेशन का फायदा ये हो सकता है कि इट इज टेकिंग लेसर ऑफ माई टाइम एंड हर पर इंडिविजुअल भी उसका बर्डन जरा कम होगा. मैं अगर एक सेशन की 3000 चार्ज करती हूँ, आई कैन अकोमोडेट 6 पीपल चार्जिंग 500 पर पर्सन, तो वो उसके लिए भी अफोर्डेबल हो गया. मेरे लिए भी एक चीज मतलब टाइम वैल्यू जो उसकी है वो मेरी पूरी हो जाती है. एंड जस्ट अगेन somebody who understands the concept of therapy, जो proper therapist हो, जो group therapy को as group therapy लेके चले, because we have many issues जो कि बहुत common है. depression की हम बात करें, students का group अलग है, women का अलग है. so there are so many homogeneous groups जिसको हम इकट्ठा करके जो है इस चीज को आगे कर सकते हैं. I think this is an area which I feel from a very long time कि इस पे काम हमारा I don't know why होता नहीं है. यूजुअली वो फिर सेशन हो जाता है, वर्कशॉप हो जाता है, बट ग्रुप थेरेपी एज अ थेरेप्यूटिक सेशन आई हैवंट सीन. आई डोंट नो कहीं होता हो तो we are मुझे भी बता दिया जाए. thinking of it, Miss Anila, at Lifeline School. We're actually that's great actually. That's very मतलब I think that is like one of the thing that we should focus on. Every group of psychologists जो at least काम कर रहे हैं इस चीज पे, they should start focusing on group therapies as well. I also feel कि ये चीज फिर जैसे आप तीनों मतलब यूनिवर्सिटी में है या उस लेवल पे क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, सो सी जब हम उस पे जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम मोस्टली उस पे इंडिविजुअल उस पे फोकस कर रहे होते हैं. हमारी इंटर्नशिप भी इंडिविजुअल सेशंस पर ही फोकस करती है. सो मे बी द चेंज कैन कम फ्रॉम देयर दैट वी स्टार्ट एटलीस्ट मतलब वहां पे कोई रिक्वायरमेंट ऐड हो या वो चीज हो सो दैट वी बिकॉज उस ग्रुप को हैंडल करना भी फॉर मोस्ट प्रॉब्ली अ सीनियर तो it would be easier because they're so वो but अगर हमें उसको accessible बनाना है so I think it has to come from the training वो also कि हम उसको internship का कोई वो part बनाएं. Not a lot but at least a few groups सबके पास हो because हमारे पास at least ICB में तो we have a lot of क्या बोलते हैं clientele.
which we can do this with. So maybe training के उससे हम उसको introduce करके फिर eventually it goes ahead. I feel हमारा ज़्यादा individual पे focus होता है जितना मुझे याद आ रहा है सारी वो चीज़. So yeah. Training basically individual उस पे होती है, but yes, group therapy is something that we really want to start. And like Ms. Sunila highlighted this point that now if we have to make a change, we have to start early, right? कि हम prevention के ऊपर काम करेंगे तो when people would come towards therapy, they would not only come when they're dealing with chronic issues, lifelong issues. They might come on they might reach therapists at that point where the issue is still developing and they have this insight. So it's also easier for us to treat someone who are on, like people who are on in the beginning of some issue, instead of working with someone जिसका issue पूरा develop हो गया है, chronic level पे पहुंच गया है और इतना intense हो गया है कि उसमें आपको भी पता होता है कि treatment में कितना time लगेगा और progress कितनी slow आएगी. So definitely school level पर, college level पर awareness sessions करना ये बहुत important है. Munazza, you want to say something? Yeah. जैसे कि मिसाइला और राबिया डिस्कस किया कि group sessions वाली चीज more than awareness session, I think अगर वो जरा कम लोगों मतलब smaller group but more repetitive, I think because जैसे you're saying कि instead के clinical level की problem हो जाए उस पर deal करना and actually proactive ऐसे steps या ऐसी चीजें अगर हम बात करें तो हमारी society में generally बहुत सारी basic चीजें जो quality of life को बेहतर कर सकती है वो नहीं जैसे अगर emotional expression पे ही हम बात करें तो emotional expression is not something that is acceptable या that is a general trend. ज़्यादातर ये होता है कि behavior level के जैसे there can be an aggressive outburst, there can be a nervous breakdown, लेकिन emotional अपने जो feelings का इजहार है वो acceptable नहीं होता. वो उसमें gender inequality भी आ जाती है कि अगर कोई teenager है जो नहीं बात करना चाह रहा या वो upset है वो तो उसको मोडी करेंगे, वो नहीं मिलता जुलता नहीं है लोगों से, इन्वॉल्व नहीं होता फैमिली में, ठीक है. सेम कोई अगर हम मेल जेंडर की बात करें तो वो तो अपनी वीकनेस वल्नरेबिलिटी शो ही नहीं कर सकते. तो और अगर फीमेल जेंडर की बात करें तो वो तो अगर इफ दे शेयर तो वो एक ओवर रिएक्शन है कि तो हर चीज को बहुत सेंसिटिवली ले लेते हैं और हर चीज पे जो है बहुत ज्यादा इमोशनल एक्सप्रेशन शुरू कर देते. जिसको एक्सप्रेशन के लिए बच्चे बदतमीज होते हैं, बड़े जो है वो या तो वीकनेस शो नहीं करना या ओवर रिएक्शन नहीं करना और ड्रामेटिक नहीं होना. तो ये अगर हम चाह के क्लिनिकल लेवल पे चीज ना जाए, दैट मीन्स हमें इंडिविजुअली या ग्रुप लेवल पे ये चीज इनकलकेट करनी कि प्रोएक्टिव बिहेवियर जो कि उससे उस क्लिनिकल लेवल तक ना लेके जाए, वो कैसे हम अपनी जिंदगी में शामिल. Also, when we're talking about inequality, I just want to say कि हमें फिर इसको, if we look at it in a global context, so inequality between the developing countries and the developed world, in terms of research and all also. Okay, मतलब जाहिर है जब हम इन चीजों से डील करें तो we need research and information कि हमारे जो population है उसमें और किस तरह के issues है, तो उसकी भी कमी है हमारे यहाँ, not just in terms of clinical practice or whatever, in terms of research, I feel, because वही funding and all of that. जैसे मुझे याद है डॉक्टर रियाज अक्सर he would mention कि हमारे यहाँ primary research ही मौजूद नहीं है. So that is also, I think, that we would say in the sense कि कितनी सारी populations ignore होती हैं जिनके पास, या फिर हमारे पास enough data नहीं होता to sort of generalize it. And then जाहिर है जब वो होगा तो फिर awareness उससे बढ़ती है. So it's a cycle, and just then from research it comes to our practice and to awareness and all of that. So yeah, I just thought I'd mention that. मेरे दिमाग में वो. Also in terms of development, sorry I'm cutting you, तो मुझे एकदम not just for that but जैसे IQ test या ये सारी चीजें जो मैं आजकल काम कर रही हूँ, so it's like on top of my head. But then again, since funding और वो सारे issue आते हैं या दूसरे भी structural issues which I went through due to the fact that we're in a developed world, so वो quality नहीं आ पाती काम में, वो strength हम या वो उस तरह से access नहीं कर पाते data को, whatever reason. So that is also something that hinders the whole mental health
sort of thing in our country or in the developing world basically. हाँ बिल्कुल, you know, पॉलिसी मेकिंग पे उस वक्त बात जाएगी. एक तो पॉलिसी मेकिंग तक पहुंचना ही हमारी एक्सेसिबिलिटी टू द गवर्नमेंट इज सो, you know, it's hurdled, it's so difficult, it's so I mean there's no path है actually जो हम follow कर सकें. ठीक है, फिर prevalence studies नहीं होती हमारे पास, and there are so many populations like, you know, Rabia said. So Miss Anila, I would take your last comment on this, that, you know, which populations are significantly ignored. Like I feel that married women and their issues, specifically young mothers, हमारे पास इमोशनल उनके फैक्टर्स पे इतनी स्टडीज नहीं होती. देयर आर अदर पॉपुलेशंस एज वेल. सो व्हाट डू यू थिंक, और कौन-कौन से ऐसे पॉपुलेशन हैं जिन पर हमें प्रेवलेंस स्टडीज की जरूरत है और हमें फंडिंग और सपोर्ट चाहिए कि हम लोकल डेटा गैदर करके फिर पॉलिसी बनाएं और उसको फिर कम करें. हमें पता ही नहीं है कि इश्यूज हैं क्या. हमें पता है इश्यूज क्या है, लेकिन उसको एक एविडेंस बेस्ड वे में हमारे पास फाइंडिंग्स नहीं होती. So what those people, Nazir? Okay, so एक बार switched off my video because मैं भूत लग रही हूँ उस वक्त with no lights. So ठीक है, I think It's okay. एक तो on top of my head I can think about transgenders. जो transgender community, I've seen a few researches about them in the journals, लेकिन by and large they're just like वही है कि किसी ने अपने थीसिस के लिए अगर कर लिया या कुछ हो, लेकिन एक तो इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेस उनकी कम्युनिटी बाय इटसेल्फ, लेकिन स्टिल आई थिंक दैट इज द कम्युनिटी उनके साथ जो एसोसिएटेड है और जो मतलब दे हैव टू फाइट फॉर देयर प्लेस in the community, in the like working world and everywhere. So I think maybe just even trying to explore that can like might lead to something better in terms of their lifestyle, their well-being as well. दूसरा, I think every lower class जो population हमारी है in every area, they're not studied, and उसका एक again main reason ये है कि they're just not like people like us, or even I would include myself in that. I wouldn't feel comfortable going into an area like that जहाँ पर मैं कहूँ कि अच्छा मुझे पता नहीं है वहाँ के लोगों का, आई डोंट बिलोंग टू दैट कम्युनिटी या टू दैट एरिया स्पेसिफिकली, पता नहीं सेफ है या नहीं है. ये इसमें से कुछ हमारे बायसेस हैं और कुछ हमारी अपनी रिसोर्स की कमी है कि हम नहीं एक्सेस कर पाते उनको. तो हमें ऐसा लगता है कि अच्छा शायद मेल मेंबर कोई साथ में हो तो हम शायद ज्यादा कंफर्टेबली एक्सेस कर सकें इन जगहों को. मेल्स हमारे पास वैसे ही साइकोलॉजिस्ट जो है वो कम है जो इस फील्ड में है. So I think this is a disadvantage for us in general कि हम lower population को ऐसे slum areas को नहीं access कर पाते. They are the ones who are in most need because उनके पास resources ना physical है ना health के हैं, और mental health तो उनकी है ही, मतलब वो है under हम कह सकते हैं कि in trouble है और उसको देखने की जरूरत है. हमारे पास कम ऐसे इदारे हैं, ICP is one of those जो कि कम पैसों में जो है वो ऑफर करता है like to the lower class population, जहाँ पर फिर भी एक उनको एक्सेसिबिलिटी मिलती है. बट वो फिर वहां पर उनकी मोटिवेशन को कंटिन्यूड रखना. एक और चीज आई थिंक वी शुड स्टार्ट अ प्रोग्राम इन जनरल टू ट्रेन कम्युनिटी काउंसलर्स. अब कुछ NGOs आई नो दे डू दिस, बट इन एवरी कम्युनिटी, बिकॉज दिस इज जेन्युइनली अ हर्डल कि हम किसी एक कम्युनिटी का पार्ट नहीं हो सकते, हम आउटसाइडर्स होंगे. we'll stand out, they might not be comfortable talking to us. So the whole आइडिया है कि हर कमरे में 2-3 लोगों को ट्रेन कर दिया टू बी लाइक जस्ट कम्युनिटी काउंसलर्स. आप अपने मोहल्ले की औरतों के, मर्दों के, उनके प्रॉब्लम्स, उनके बच्चों के, जनरल थेरेपी की टेक्निक्स होती हैं, एक्टिव लिसनिंग की एंड ऑल ऑफ दैट, उसमें भी अगर आप ट्रेन कर दें तो दे कैन जस्ट प्रोवाइड लाइक अ गुड लिसनिंग ईयर टू देम. मे बी एक unburdening जो something that we should be working on ideally on a governmental level, but very लेकिन पर्सनल लेवल, प्रोफेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इफ वी जस्ट स्टार्ट दिस लिटिल प्रोग्राम के डिफरेंट एरियाज के उनको करें तो फिर वी कैन मे बी टारगेट मोर लोअर क्लास. हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि जो लोअर क्लास सोसाइटी है उसमें अगर हम कम्युनिटी काउंसलर्स प्रोड्यूस कर लें, उनको ट्रेन करें सो दैट दे कैन ऑफर काउंसलिंग to the people in their society, in their community, तो वो कम चार्जेस पे they can offer it. उनकी भी कुछ एक हम सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उनको दे सकते हैं, उनका घर उससे चल जाएगा. जो बाकी के एरिया के लोग हैं उनको भी एक एक्सेसिबल सपोर्ट मिल सकता है टू गेट दैट हेल्प दैट वी वांट टू प्रोवाइड टू.
Yes, बिल्कुल, definitely, because हम अकेले नहीं कर सकते. Again, coming back to the point, because if we would continue to just do what we can do, तो उसमें फिर भी हमारा गोल तो नहीं मीट होगा कि हम ओवरऑल मेंटल हेल्थ चेंज ला सकें. सो वही है कि कम्युनिटी काउंसलर्स ये एक अच्छी टेक्निक और एक अच्छा स्टेप होगा अगर ये लिया जा सके, क्योंकि करंटली सिर्फ जो इंटरनेशनल प्रोग्राम से फंडिंग आती है या जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनली फंडेड होते हैं, उसी में वो कुछ लो इनकम सेटलमेंट्स में जाके उन काउंसलर्स को ट्रेन करते हैं, या उन्हीं कम्युनिटीज से जो है वो फील्ड वर्कर्स को ट्रेन करते हैं. दे गैदर डेटा, बट वंस द प्रोजेक्ट एंड्स और उससे जो भी फंड होता है वो स्पेंड हो गया, फिर वो और कम्युनिटीज तक नहीं पहुंचता. तो ये भी एक इशू है ना कि गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं है, जो इंटरनेशनल फंडिंग है वो लिमिटेड इश्यूज पे काम कर रही है. हम अपने लेवल पे सजेशंस दे सकते हैं. वी आर अवेलेबल टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड वी आर available to collaborate, because we have this motivation कि हम collaboration से काम कर सकते हैं. So yes, I think our today's discussion was mainly about that how we see inequality in different aspects in the context of Pakistan. And we discussed a lot of significant points from the perspective of clients, from the perspective of therapists, and not just, the tangible reality of inequality, but also how it operates implicitly, emotionally, and, in social variables as well. So yes, किसी को कुछ और point add करना है, or we can further move towards conclusion? No. Okay. Thank you so much for joining us, Rabia and Miss Anila. And despite of all the tech issues that we faced in the beginning and in the middle of the podcast as well, but still, it was really relaxing, I would say, to hear you people sharing your inner voice, and that is basically the voice that all of us have. The thoughts that we're having, they're always running in the background, but just listening to them is it causes some catharsis. And I'm sure the clients also feel this. Sometimes they just don't want to admit that we are doing something for them, especially in the beginning phase of the therapy. या फिर राबिया का वही वाला point कि awareness के उस level पे होती नहीं है चीज, कि कुछ हो रहा है, कि बोलने से भी वो जो एक emotions bottled up हैं, they're getting a structure and it's causing a release of tension. वो इतनी tension में होते हैं कि उनको वो release शायद feel ही नहीं होता, या कुछ को feel भी हो जाता है. So yes, I hope in future maybe हम किसी certain specific topics पे we would continue this process of holding podcasts, and हम खुद ही enjoy कर रहे हैं इस चीज में. We hope कि इसके through और लोग भी इससे कुछ उनको भी help हो once they see us. So okay, we'll meet next time inshallah. And Inshallah. thank you everyone for joining. Thank you. Hafiz. Hafiz. Allah Hafiz. Hafiz.